الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اس بچے کو اٹھا دو یہاں سے، اس کو گھر لے جاؤ بھائی. میں اس طرح نہیں بول پاؤں گا بھائی، میں کوئی شادی میں نہیں آیا کروں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو پیچھے بٹھایا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفي مقام آخر انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے.
جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 3 مارچ سن 2024 کو آپ حضرات کے اس علاقہ سرکال مائر ضلع چکوال میں برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب کی وساطت سے یہاں کی انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس مرکز کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ جس طرح مولانا فاروق حیدری صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ساری رات سفر کیا ہے، طویل سفر، رات کو 12 بجے میں نکلا اور صبح 8 بجے پہنچا، پھر وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور طبیعت پہ بھی شدید اثر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں الیکشن لڑا ہوں اور الیکشن کے بعد پھر تھکاوٹ آتی ہے، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا اور نہ ہی لمبی چوڑی تقریر کا عادی ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس پتھروں کے پہاڑ نہیں ہوتے، عطروں کے قطرے ہوتے ہیں۔ جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2024 ہے، 39 برس گزر گئے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ ان 39 برسوں میں اللہ نے مجھے پوری دنیا گھمائی، پورے عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کینیڈا، دنیا بھر کے 60-70 ملکوں میں اللہ مجھے 20-20 دفعہ لے گیا اور میں نے وہاں اللہ رسول صاحب اور اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجائے، مگر آپ میری کوئی تقریر اٹھائیں ان 39 برسوں کی تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں،
हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। जिस तरह आप चाहते हैं ना कि मुकर्रिर माइक पर आए तो हमें मज़ा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। अब एक दफ़ा गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। मुजावरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मुर्दों वाली नहीं, जिंदों वाली सुभान अल्लाह। ममाती वाली नहीं, हयाती वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आप दरमियान में मुझे रेस्ट देना, अभी मैं इनको जगा लूँ, थोड़ा हिला लूँ, उठा लूँ, बिठा लूँ, फिर इंशाल्लाह। नहीं, मैं दूंगा मौका आपको, मुझे पता है यहाँ खुद्दाम वाले बैठे हैं और खुद्दाम वाले तो बूढ़े भी जवान होते हैं, माशाल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। मैं बात शुरू करने चला हूँ कि जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं। उसे जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं, और जो उस नबी की गवाही दे उसे सिद्दीक कहते हैं। फिर रिपीट करता हूं ताकि आपका ज़ौक़ ताज़ा हो जाए। जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं, जो उस नबी की गवाही दे उसे सिद्दीक कहते हैं, और जिसकी रब गवाही दे उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। तो आओ फिर सरकार वालों, मैं आज तुम्हें उसी यार गारे पैगंबर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक कौसर, रफ़ीक गार, रफ़ीक मज़ार, रफ़ीक जन्नत, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबदा, अतीका, अफीफ़ा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाप, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफे बिला फ़स्ल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊंगा। और मैं उसकी इब्तदा इन जुमलों से किया करता हूं। थोड़ा सा इसकी इको कम करें, थोड़ा सा, ताकि सीटी न बजे। कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, थोड़ी खोलें, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की यकताई थी, रात की रानाई थी, और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है। अचानक आसमान पर नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने, थोड़ी को खोलो, तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, हुजूर फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा ये तो बताएं कि ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा, आयशा मैं आलिमुल गैब हूं, अभी बताता हूं, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है, मेरे इल्म में नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इजहार और तखय्युल और तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद बेशुमार
अनगणित। अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंद से खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इनको शुमार नहीं कर सकता। तो तैयब कायनात ने जवाब पे सवाल कर दिया, हुजूर अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगणित, फिर मुझे बताए कि आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरे असाब में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके वफा शियारों में, आपके इन्हुबदारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन बर्जिस्ता फिर बदी, सोचो विचार करके नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, सर खुजा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, हिसाब किताब लगा के नहीं, फौरन कहा, हाँ आयशा मेरी उम्मत में, मेरे असाब में, मेरी जमात में, मेरे यारों पैरोकारों हुब्दारों जानिसारों वफादारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। जब अल्लाह के पैगंबर ने यह जवाब दिया तो तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बलब हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। और अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे, और तैयबा कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। हुजूर की नजर जब चेहरा आयशा पे पड़ी तो अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पर इज़हारे इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जमीन पर इज़हारे मुसर्रत नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे होठों पर हंसी की किरण रक्षा होती नहीं देखी। तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा, आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई मेरा बाप पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। अल्लाह के पैगंबर ने जब ये बात सुनी तो तैयबा कायनात से कहा, पूरी तवज्जो रखना सरकार वालों, अपने ज़ौक़ का एक जुमला कहने चला हूं। जब तैयबा कायनात ने कहा ना, अल्लाह के पैगंबर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि मैं तो समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, लेकिन आज आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया कि उमर की नेकियां सितारों से ज्यादा हैं। तो मैं आज समझ गई मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया और उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। सरकार वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताज़ा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा 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 तूने ये पूछा है, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं, तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं। अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती।
عائشہ तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं, तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं। अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी हैं, तो फिर सुन, उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ सरकार वालों, टाइम नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, मैं तुम्हें उस रात की खुशबू सिंघाऊं कि वो रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर अपने बिस्तर पे महव इस्तराहत हैं और जनाब अली शेर जली हक का वली असदुल्लाह अल गालिब अबू तराब अबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों का बाप शौहर ज़ारा गौहर काबा जनाब अली उल मुर्तज़ा अल्लाह के पैगंबर के साथ महव इस्तराहत है। आधी रात का वक़्त अली शेर खुदा कहते हैं, मेरे कानों में शोर की आवाज़ आई, मैं उठा और मैंने दीवार से कान लगा के सुना कि ये शोर कैसा है। हज़रत अली कहते हैं, मेरी हैरत की इंतहा न रही जब गली से मुझे आवाज़ें आई कि नऊज़ बिल्लाह, आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, हाँ, और आज हम मुसलमानों के नबी को शहीद कर देंगे। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं फ़ौरन वहाँ से भागा, पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमलों पर, मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और मैंने आकर हुजूर को जगाया, मैंने आकर हुजूर को, सारे बोलो हुजूर को। अब इस मकाम पे आकर कुछ कम पढ़े लिखे मौलवी, सुनी सुनाई तकरीरें करने वाले मौलवी, वो हज़रत अली की शान को घटाने लग जाते हैं, हाँ, कि जी अली ने सुलाया, सिद्दीक ने जगाया। उस बेचारे को पता नहीं होता कि उसने जगाया क्यों था, उसने सुलाया क्यों था। उसकी ड्यूटी जगाने की थी, उसकी ड्यूटी सुलाने की थी। पूरी तवज्जो रखना ताकि मैं आपको आज मसला समझा सकूं कि अली ने जगाया क्यों था और सिद्दीक ने सुलाया क्यों था। पूरी तवज्जो रखना। अली शेर खुदा आए और आकर हुजूर को जगाया। हुजूर जाग पड़े, पूछा अली खैरियत, क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी खैरियत नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अर्ज की या रसूलल्लाह, बाहर काफिर आपको मारने आए हैं, काफिर आपको मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अली घबराने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं होगा। हुजूर वो कैसे? हम 2 वो 100, हम 79 वो मुसल्ला, हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास 23 तलवार नेज़े बर्छी हर चीज। हुजूर ने फरमाया अली देख तो सही मैं आज इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों पर डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। उस दिन से हुजूर ने मिट्टी फेंकी, आज तक मुंह में भी मिट्टी होती है, सर में भी मिट्टी होती है। हाँ? अली देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। हुजूर उठे और अली शेर खुदा से कहा, पूरी तवज्जो रखना, बात को किनारे लगाने चला हूँ। अली शेर खुदा से कहा, अली मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ से उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से हम वहाँ जाएंगे, ये मेरी चारपाई है, तू यहाँ सो जा, सुबह जब उठना ये मक्के वालों की अमानतें पड़ी हैं, ये उठा के उनको वापस करना और फिर तुम भी हमारे पीछे पीछे आ जाना, जब तक तुम नहीं आओगे हम मदीने में दाखिल नहीं होंगे। तो मतलब क्या निकला कि हुजूर ने हजरत अली को अपना सारा रूट बता दिया था, अपना सारा शेड्यूल हुजूर ने बता दिया था। अब अली सो गए, अली सो गए। अब यहाँ भी खतीब बड़े वजद में आके कहता है अली सोया था, सिद्दीक ने सुलाया था। वह जालिम का बच्चा ये तो बता, आज की रात, पूरी तवज्जो रखना सरकार वालों, हाँ, आज की रात तलवारों के साए में इस बिस्तर पे सोना कोई आसान था? अली का ये सोना भी आज की रात जुर्रत और बहादुरी और इस्तेकामत का कोहे करा था। और तुम्हें अगर किसी कमरे में सांप
बिच्छू का खतरा हो तू नहीं सोता। अली को पता था 100 तलवारें खड़ी है, अली तलवारों के साए में उस बिस्तर पे सोया तो अली जैसा बहादुर भी कोई। अब अली शेर खुदा सो गए, थोड़ी देर गुजरी, हुजूर चले गए। थोड़ी देर के बाद अबू जाल एंड कंपनी दीवार फलांगी और अंदर दाखिल हो गए। अंदर आए, पूरी तवज्जो से एक और जुमला देने चला हूं। अंदर आए, देखा घर हुजूर का है, चारपाई हुजूर की है, बिस्तर हुजूर का है। पूरी तवज्जो रखना सरकार वालों, एक अपने ज़ौक़ का जुमला देने चला हूं। अबू जाल ने और उसके एंड कंपनी ने, एंड ब्रदर्स एंड सन्स, सब ने देखा कि घर भी हुजूर का, चारपाई भी हुजूर की, चादर भी हुजूर की, कंबल भी हुजूर का। हाँ, तो दुनिया में, तारीख में सबसे पहला मुतशाबे लगा अबू जहल को। अबू जहल ने समझा कि शायद ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है, और करीब जाकर नबी समझकर कहा, कुम या मोहम्मद, ए मोहम्मद उठो। लेकिन जब चादर हटाई तो आगे देखा नबी नहीं, ये तो अली है, ये तो अली है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, पूरी तवज्जो रखना, फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला 1400 साल पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा था वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा तो वो अबू जहल की नस्ल हो सकता है, मोहम्मद का उम्मती नहीं हो सकता। तारीख में सबसे पहले अबू जहल ने अली को नबी समझा था। अब जब कहा कुम या मोहम्मद, चादर हटाई तो आगे अली है। अबू जहल हैरान, परेशान, सरगर्दान, पशेमान, गोश बदनदान, अर्क में गर्क, पसीने में शराबूर, डूब के पूछता है, अली नबी कहां गए, नबी कहां गए? मैं यहां भी एक जुमला कहा करता हूं, आगे भी अली था, शेर जली था, हक का वली था। अली ने न झूठ बोला न तकिए का दर खोला। अली ने यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं, क्यों? पता था, पता हुजूर सारा कुछ बता के गए थे, पूरा रूट शेड्यूल हुजूर ने अली को बताया था। इसलिए अली ने यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। जब अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा वो तो चले गए, वो तो चले गए। अबू जाल ने फिर पूछा, कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था, जहां जाना था। अबू जाल ने फिर घुमा के पूछा, कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अबू जाल को लाटू की तरह घुमाकर उल्लू का पट्ठा बना दिया, मगर नबूवत का राज नहीं दिया। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा वो तो चले गए। पूछा कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। पूछा कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। अब अगला जुमले के लिए तैयार रहना। अबू जाल ने मक्के वालों को बुलाया और बुलाकर कहा, मक्का वालों पूरी तवज्जो से सुनना, अबू जहल का जुमला सुना रहा हूं। आज उसकी औलाद माने न माने, मैं उनके बाप की बात कर रहा हूं। अबू जाल कहने लगा, मक्के वालों आओ मैं तुम्हें बताता हूं आज की रात मोहम्मद कहां गया होगा। तो सारे भागे और अबू जाल के करीब आके घेरा बना लिया और पूछने लगे, अबू जाल जल्दी बता ताकि हम पीछा करें। अबू जाल के जुमले सुन। अबू जाल कह रहा है, मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। ये कौन कह रहा है? सारे बोलो, कौन कह रहा है? अबू जहल। आज उसकी औलाद न माने, फरमाई नहीं पड़ती। उनका बाप मान गया है कि अबू बकर मोहम्मद का सच्चा यार है। अबू बकर मोहम्मद का सच्चा यार है। अबू जाल कह रहा है कि आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो दरे सिद्दीक पे गया होगा। अब इधर ये मुकालमा जारी है, उधर हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंच गए। दस्तक दी, अबू बकर ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े। सिद्दीक ने पूछा, हुजूर ये क्या? अल्लाह के पैगंबर आप आधी रात को मेरे दरवाजे पर? हुजूर कोई काम था, मुझे बुला लेते,
کوئی ایلچی نمائندہ قاصد نوکر چاکر ورکر غلام بھیج کر مجھے طلب فرماتے، میں سر کے بل چل کے آتا۔ حضور آپ نے کیوں تکلیف کی؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تجھے پتا نہیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں تو کسی کا پابند ہوں، جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا جاتا ہوں۔ ابو بکر آج مجھے آرڈر ہی نہیں تھا کہ میں تجھے بلاؤں، بلکہ آرڈر ہی یہی تھا کہ میں خود چل کے تیرے دروازے پہ آؤں۔ کیوں کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کے دروازے پہ چلا جائے تو اس بڑے کی وجہ سے اس چھوٹے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ابو بکر میں تیرے دروازے پہ اس کو بھیجوں گا جس سے بڑا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب صدیق نے پوچھا حضور حکم کیسے آنا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر دشمن پیچھے ہے، چلو مکہ گھر بار وطن کاروبار سب کچھ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے، چلنا ہے۔ جو ہی حضور نے کہا ابو بکر سب کچھ چھوڑ کے چلنا ہے، جاؤ تاریخ کی ساری کتابوں کی ورق گردانی کر کے دیکھو۔ ابو بکر نے کوئی سوال و جواب، باس و تمیز، آرگومنٹ، ایکسکیوز، معذرت، سوری، بہانہ کچھ نہیں۔ حضور نے کہا چلنا ہے، ابو بکر چل پڑا۔ جو زندہ بیٹھا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ ابو بکر چل پڑا۔ اب چلتے 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 حضور نے کہا ابو بکر تیز چلو، دشمن پیچھے ہے۔ تیز چلنے لگے، تھوڑی دیر تک پہنچے۔ ابو بکر نے حضور سے کہا حضور ذرا 1 منٹ روک کے میری بات تو سنیں۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ابو بکر ابھی تجھے کہا ہے تیز چل، دشمن پیچھے ہے، اور تو کہتا ہے میں روک کے تیری بات سنوں؟ چلتا بھی جا، بات کرتا جا، میں سن لوں گا۔ ابو بکر نے کہا حضور 1 منٹ کے لیے رک جائیں نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ حضور رکے اور پوچھا ابو بکر ایسا کیا ہو گیا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی؟ بیوی بچے یاد آئے، ماں باپ یاد آئے، کاروبار تجارت گھر بار وطن یاد آیا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی یہ سب کچھ تو میں آپ کے قدموں کی دھول پر قربان کر چکا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، بلکہ آپ کے پاؤں سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو اور آپ پیدل چلے۔ حضور نے کہا ابو بکر اگر پیدل نہ چلوں تو کیا کروں؟ آدھی رات کو سواری کہاں سے لاؤں؟ ابو بکر نے روک کے کہا حضور اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بنے گے۔ حضور آج ابو بکر کے کندھے محمد کی سواری بنے گے۔ پوری توجہ رکھنا، صدیق بیٹھے، نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑے، اٹھا کے چل پڑے۔ اس سے بھی ایک اگلا جملہ کہتا ہوں، صدیق بیٹھے، نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے دوڑ پڑے۔ یہ بھی چھوٹا جملہ تھا، اب آسمان سے بھی بڑا جملہ کہنے چلا ہوں، دیکھوں گا کون سی زبان گونگی رہتی ہے۔ صدیق بیٹھے، پوری میری طرف دیکھ کے توجہ کر کے سننا، صدیق بیٹھے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑا۔ اٹھا کے، سارے بولو، اٹھا کے اڑ پڑا۔ میں نے ایک جگہ، بڑی پرانی بات ہے، 1997 میں ایشیا کے دورے پہ تھا، سنگاپور، چائنا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ہانگ کانگ۔ تو ہانگ کانگ میں نے ایک سیمینار میں اس عنوان پہ سپیچ کی 97 میں، اور میں نے یہ جملہ جب کہا کہ صدیق بیٹھا، نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑا، تو یہ جو ہمارے پیٹی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں نا سٹیج پہ، یہ ہمیں دوربین لگا کے سنتے ہیں کہ کہیں سے مولوی کی کوئی غلطی پکڑے۔ ہاں، یہ نقاد والی نگاہ سے ہمیں سنتے ہیں۔ اور اس مولویوں میں بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں پڑھے ہوئے، ایک ہوتے ہیں کڑھے ہوئے، ایک ہوتے ہیں سڑے ہوئے۔ ہر شہر میں ایسے ہوتا ہے، پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور سڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں بھی کوئی سڑا ہوا بیٹھا تھا بیچارہ، تو تقریر کے بعد مجھے کہتے ہیں عباسی صاحب یہ آپ نے کہاں سے استدلال کیا، یہ طرز استدلال آپ کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا جملہ کہہ دیا، صدیق بیٹھا، نبوت کو اٹھایا اور اٹھا کے اڑ پڑا۔ میں نے کہا کاش
तू सड़ता कम और पढ़ता ज्यादा, तू तारीख का मुताला कर लेता। कहता है वो कैसे? मैंने कहा मैंने तो हुजूर की सीरत में जब तारीख पढ़ी है, मेरे नबी ने जिस सवारी पे सवारी की है वो चली नहीं उड़ी है। चाहे वो हलीमा की बीमार ऊँटनी थी, आते हुए चल नहीं सकी, जाते हुए उड़ के जा रही थी। दाइयां पूछने लग गई, हलीमा ये वही ऊँटनी है जो आते हुए लड़खड़ा रही थी, चल नहीं सकती थी, अब तो उड़ के जा रही है, नहीं खरीदी है? हलीमा ने कहा सवारी हुई है, सवार बदल गया है। मैंने कहा कि मैंने तो हलीमा की बीमार ऊँटनी पे भी देखा, मेरे नबी ने सवारी की तो वो भी उड़ने लग गई, बुराक पे सवारी की तो वो भी उड़ने लग गई, और अबू बकर के कंधों पे सवारी की तो अबू बकर भी उड़ने लग गए। और मैं अगला जुमला कहा करता हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूं कि उड़े बगैर ये सफर मुकम्मल होता मुझे नजर ही नहीं आता। क्यों? आप बहुत दफा हज और उम्रे पे गए होंगे, अल्लाह मुझे भी बहुत दफा ले गया, उसका करम है, साल में 3-3, 4-4 चक्कर भी अल्लाह लगवा देता है मेरे। हाँ, अल्लाह ने 15 दफा मुझे हज कराया और 60 दफा उम्रा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मेरी उम्र के साल नहीं है जितना मेरे हरम के चक्कर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 75 चक्कर अल्लाह ने मुझे अभी तक लगवाए हैं और इंशाअल्लाह 75 अल्लाह और भी लगवाएगा इंशाअल्लाह। तो ये बताने की मकसद क्या है, कोई अपनी शेखी बिखाड़ना नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 75 दफ़ा मैंने भी हरमैन का सफ़र किया, लेकिन मैं भी गार तक 2-3 दफ़ा गया हूँ। हर दफ़ा बंदा नहीं जा सकता, हिम्मत नहीं होती। आप गए होंगे जब वो ज़ियारत वाले गाड़ी भर के ले जाते हैं ना, या आप कार में जाएं, लेमोजीन में जाएं, और वहाँ जब उतरते हैं तो उतरते ही जब बंदा देखते हैं ना, वो इतना दूर है, आधे तो वहीं पंचर हो जाते हैं। ओ जी मैं तो गिट्टे गोडियां का मरीज़ हाँ जी, मैं साह का मरीज़ हाँ जी, मैं शुगर का मरीज़ हाँ जी, मैं हार्ट का मरीज़ हाँ जी, मैं फेफड़ियां का मरीज़ हाँ जी, मैं उत्ते नहीं चढ़ सकता, बस मैं इत्थों खलो के वेख लिया जी, सवाब हो गया हो गया, बस तुसी चले जाओ तुसी चले जाओ। तो जो जाते हैं 2, 4, 10, 20 वो भी क्या करते हैं, हाँ सरकार वालों तवज्जो रखना मेरे जुमलों पर, जो जाते हैं ना वो भी क्या करते हैं, नीचे बकाले खड़े हैं, उन बकालों से दूध लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, मिनरल वाटर लेते हैं, खजूर लेते हैं, और आपस में कहते हैं यार आ तो सही चल दे, खांदे पींदे चल सा, उठते बहदे चल सा, रेस्ट कर दे चल सा, आखिर किसी वेले तक पहुंच जा सा। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अता पे, हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, ना तू रास्ते में बैठा, ना पानी पिया, ना सांस लिया, अकेला भी नहीं, नबुव्वत का बोझ कंधों पे था, एक सांस में 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया, तो मैं क्यों ना कहूं अबू बकर चला नहीं, दौड़ा नहीं, नबी को उठा के उड़ा था। उड़े बगैर पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। तू और मैं अकेले नहीं जा सकते, और अबू बकर नबूवत के बोझ को कंधों पे उठा के 3 मील लंबी पहाड़ी पे चढ़ गया। हाँ, अब जब पहुंचे गार के दहाने, तवज्जो रखना, उस नुक्ते पे आ गया हूं कि आओ देखते हैं कि ये एक रात इतना कीमती कैसे बन गई कि उम्र जैसे उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। उस नुक्ते पे ले आया हूं जो मैंने अर्करेजी की है, जो मुझे शरह सदर हुआ है, जो मैंने होते लगाए हैं, और अल्लाह ने मुझे जहां पे शरह सदर किया कि ये वो मकाम था जो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इस एक रात की कीमत उम्र की सारी उम्र से ज्यादा कर दी। उस मकाम पे ले आया हूं। सिद्दीक जब गार के दहाने पे पहुंचे, पूरी तवज्जो रखना, बात को किनारे लगा रहा हूं। सिद्दीक जब गार के दहाने पे पहुंचे, हुजूर को कंधों से उतारा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना, यह खुलासा है मेरी तकरीर का, चंद मिनट खुलासा। हुजूर को कंधों से उतारा, और उतारते ही हक बनता था। सिद्दीक कहते, हुजूर बूढ़ा आदमी हूँ, नबूवत का बोझ था, 3 मील पहाड़ की चढ़ाई थी, रात का सन्नाटा था, ऑक्सीजन की कमी थी, नीचे कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे, बिच्छू और खटमल भी थे। हुजूर इजाज़त हो 2 मिनट आराम कर लूँ, इजाज़त हो
2 मिनट कमर सीधी कर लूं, इजाजत हो 2 मिनट पानी पी लूं, इजाजत हो 2 मिनट सांस ले लूं, लेकिन अबू बकर मैं तेरी वफाओं पे दुनिया की वफाएं कुर्बान कर दूं। अबू बकर ने एक भी ऐसा जुमला नहीं कहा कि हुजूर मैं थक गया हूं, इजाजत हो तो आराम कर लूं, बल्कि उल्टा अबू बकर ने कहा हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। ये जुमला रब को इतना पसंद आया कि रब ने कहा अबू बकर उठा के तो तू लाया था, थकना हक तेरा बनता था और तूने उल्टा मेरे नबी से कहा आप थक गए होंगे। ये जुमला इतना रब को पसंद आया कि इस एक रात को इतना कीमती बना दिया कि ये एक रात उमर की सारी उम्र से आगे निकली। अब हुजूर ने पूछा उमर अबू बकर बिस्तर कहां से लाओगे? हम बिस्तर तो नहीं लाए थे, कहां से लाओगे बिस्तर? तो सिद्दीक ने फिर मुस्कुरा कर कहा हुजूर अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर ने कहा चलो फिर अंदर चले। सिद्दीक ने कहा हुजूर नहीं, आप बाहर रुकें, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। हुजूर ने कहा पीछे दुश्मन है। अबू बकर ने कहा होगा हुजूर आगे भी दुश्मन है, अल्लाह करे समझ जाओ, हुजूर आगे भी दुश्मन है। हुजूर पहले मैं अंदर जाऊंगा, मैं जाके झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, फिर आपके लिए बिस्तर बनाऊंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। हुजूर ने फिर पूछा अबू बकर झाड़ू कहाँ से लाओगे? हम तो झाड़ू घर से नहीं लाए थे। तो अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा हुजूर अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बने, अगर बिस्तर नहीं है अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी, अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक अंदर गए, पगड़ी उतारी और उतार के झाड़ू बनाया, सफाई शुरू कर दी। कूड़ा क्रिकेट गंद खटमल शटमल सब बाहर फेंके, हाँ, और फिर देखा जगह जगह सुराख नजर आए, जगह जगह सुराख नजर आए। अबू बकर ने उसी पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। अबू बकर ने कंधे की चादर उठाई, उसके टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर भी बच गए। अबू बकर ने कमीज उतारी, कमीज के टुकड़े किए, सुराख बंद किए। अब सिर्फ तहबंद चादर बाकी है, वो बांधी हुई है क्योंकि सतर ढांपना जरूरी है, वाजिब है। अब कपड़ा खत्म मगर सुराख अभी तक भी 1-2 बाकी। अबू बकर ने क्या किया, पूरी तवज्जो रखना, बात खत्म करने चला हूं। अबू बकर ने अपने पाँव की एड़ी उस सुराख पे रख दी और पाँव की एड़ी उस सुराख पे रख दी और झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया, हुजूर बिस्तर बन गया है, आप आके आराम करें। हुजूर आए और आके सिद्दीक की झोली में सर रखा और आके सो गए। अब तवज्जो रखना सरकार वालों, खुलासे कलाम देके बात खत्म करने चला हूं। अब झोली सदाकत की थी, सर नबूवत का था, दरमियान में फासला कोई नहीं था, तो मंजर बना बिला फासल। जब काले ने देखा कि मंजर बिला फसल का बन गया है, तो वो काला सांप जो छुपा बैठा था भागा और आकर अबू बकर को डसने लगा कि मैं डसूं और बिला फसल का मंजर खत्म कराऊं। आगे भी सिद्दीक था, ज़बाने शायर से कहने लगा सो मेरे गनीम न भूल तू कि सितम की शब को ज़वाल है, तेरा जुल्म जब बला सही मेरा हौसला भी कमा। काला डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। काला सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। मुझे किसी ने कहा कि अबू बकर की आंखों में तो आंसू थे, आप कह रहे हैं हंसता रहा। मैंने कहा काश तेरा कुछ ज़ौक़ ताज़ा होता, तुझे पता नहीं है, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, मेरे अपने ज़ौक़ के जुमले होते हैं। मैंने कहा कभी बंदा इतना हंसता है, इतना हंसता है, इतना हंसता है कि हंसते हंसते आंखों से पानी बह पड़ता है। अबू बकर भी अंदर ही अंदर इंजॉय कर रहा था कि बिला फसल का मंजर बनाना, झोली सदाकत की, सर नबूवत का, दरमियान में फासला कोई नहीं। काला तड़पने फड़कने लग गया कि ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो यही रहना है बिला फसल का, और अबू बकर बिला फसल हो गया।
اسے جدا کروں تاکہ کہہ سکوں کہ فاصلہ تھا. ہاں کالا ڈستے ڈستے تھک گیا, ابو بکر سہتے سہتے نہیں تھکا. جب کالے سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈسا تو سیانے لوگ بیٹھے ہو, جب کسی کو سانپ ڈسے تو فوراً کہتے ہیں یار اس کو کس کے پٹی باندھو تاکہ زہر اوپر نہ چڑھ جائے, اور پھر پٹی باندھ کے زہر کو چوستے بھی ہیں کہ زہر سرایت نہ کرے, خون میں بلڈ میں سرکولیٹ نہ کرے. ایمان سے بتاؤ ابو بکر نے پٹیاں باندھی تھی؟ بولو ابو بکر نے پٹیاں باندھی تھی؟ چلو یہ بھی بڑا جملہ ہے, اس سے بھی ایک اور باریک جملہ کہتا ہوں. ابو بکر نے پٹیاں باندھنا دور کی بات, ابو بکر نے پاؤں ہٹایا تھا؟ سارے بولو پاؤں ہٹایا تھا. چلو ہٹانا بھی بہت بڑا جملہ ہے, اس سے بھی باریک جملہ کہنے چلا ہوں. ابو بکر نے پاؤں ہلایا تھا؟ ہٹانا دور کی بات, ابو بکر نے تو پاؤں ہلایا ہی نہیں. کیوں؟ پاؤں ہلتا ہے ٹانگ ہلتی ہے, ٹانگ ہلتی ہے نبی کی آنکھ کھلتی ہے, آنکھ کھلتی ہے نبی کا آرام جاتا ہے. ابو بکر تہیہ کر چکا تھا, جان جاتی ہے تو جائے پر محمد کا آرام نہ جائے. وہ ڈٹ کے بیٹھا رہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ زہر سرایت کرتا ہے. ایڑی سے چلا پنڈلی میں, پنڈلی سے چلا رانوں میں, رانوں سے چلا پیٹ میں, پیٹ سے چلا جگر میں, جگر سے چلا حلق میں, حلق سے چلا دماغ میں. جب پورے جسم میں کالے کا سانپ کا زہر سرکولیٹ کر گیا نا, اور زہر کا اثر ہوا, ابو بکر کے ماتھے پہ پسینہ بھی آیا, اور ابو بکر کا سر چکرانے لگا, اور ابو بکر کی آنکھوں سے شدت زہر کی وجہ سے پانی بھی ٹپکنے لگا. ہاں تو ملنگ یہاں پہ تبرہ بازی کرتا ہے کہ ابو بکر رویا تھا. میں کہتا ہوں تو 4 دفعہ کھانسے تیرے پانی نکل آتا ہے, تو 4 چھینکے مارے تیرا پانی نکل آتا ہے, تجھے اگر کوئی چھوٹا سا کیڑا آ کے ڈس لے تیرا پانی نکل آتا ہے. ابو بکر تو کالے کا زہر برداشت کر کے بیٹھا تھا, اگر اس کی آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا کون سی بڑی بات ہو گئی. میں تو اس سے بھی اگلا جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ پانی بھی نہ ٹپکتا, رب نے ٹپکایا تھا. رب نے ٹپکایا تھا. کیوں؟ کہ ابو بکر تو نہ پاؤں ہٹا رہا ہے, نہ پاؤں ہلا رہا ہے, نہ نبی کو جگا رہا ہے. اللہ نے کہا ابو بکر تو نہیں جگا رہا تو کیا ہوا, میں تیری آنکھوں سے شبنم کے قطرے بہاؤں گا, نبی کے رخساروں پہ گراؤں گا, اسی بہانے محمد کو جگاؤں گا, پھر جگا کے اسے بتاؤں گا محبوب آنکھیں کھول دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یار دیا. محبوب دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کیسا یار دیا, جو سانپوں سے ڈسا بیٹھا ہے لیکن تجھے چھوڑ نہیں رہا. اب ابو بکر کی آنکھوں سے شبنم کے قطرے گرے, بالکل آخری جملے پہ آ گیا ہوں, اور حضور کی رخساروں پہ گرے. حضور جاگے, حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا, ابو بکر کیا ہوا. صدیق نے مسکرا کے کہا حضور کچھ نہیں, وہ بلا فصل کا منظر بن گیا تھا نا, تو ذرا کالے سانپ کو برداشت نہیں ہوا, تو وہ کالا تڑپنے پھڑکنے لگ گیا کہ یہ کیا, قیامت تک جھگڑا یہی رہنا ہے اور منظر بلا فصل کا ہو گیا ہے. تو حضور نے کہا پھر, اس نے کہا جی کالے نے آ کے مجھے ڈسنا شروع کر دیا. ابو بکر پھر تو نے پاؤں ہٹایا نہیں. حضور کیسے ہٹاتا, آپ سو رہے تھے, میں پاؤں ہٹاتا تو آپ کو جگاتا. ہاں حضور میں نے جان دینا گوارا کی مگر آپ کے آرام پہ کمپرومائز نہیں کیا. حضور نے فرمایا اچھا صدیق اتنی وفا, توجہ رکھنا اتنی وفا, ادھر لا ایڑی, ادھر لا ایڑی. ابو بکر نے ایڑی آگے کی, حضور نے اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ابو بکر کی ایڑی کو رکھا اور اپنی شہادت والی انگلی پر لعاب دہن لگایا, اور لعاب دہن لگا کر جیسے تم انگوٹھا نہیں لگاتے اسٹام پر, حضور نے ایسے ٹھپا لگا دیا ابو بکر کی ایڑی پر. تھوڑا جاگ کے بیٹھنا, میرا آخری 1 منٹ ہے, جاگ کے بیٹھنا تاکہ میں خلاصہ دے سکوں. ہاں جیسے تم ٹھپا لگاتے ہو اسی طرح حضور نے
ठप्पा लगाया, मगर फ़र्क क्या था? तुम अंगूठे से लगाते हो, हुजूर ने शहादत वाली उंगली से लगाया। किस उंगली से? शहादत वाली। क्यों? आज हुजूर ने कोई गवाही देनी थी, कोई गवाही देनी थी, और ये गवाही हुजूर ने 2 मकाम पे दी, एक आज, एक खैबर के मैदान में। आज जो गवाही दी, उंगली भी शहादत वाली, लुआब दहन भी अपना, और ठप्पा अबू बकर की एड़ी पर। एक मकाम आया खैबर का, वहाँ भी शहादत वाली उंगली, हुजूर का लुआब दहन, मगर अली की आंखों पे ठप्पा। अब सरकार वालों, खुलासा जाके बेड पे बैठ के सोचो विचार करके खुद ले लेना कि खुलासा क्या निकलता है। अबू बकर की एड़ी पे ठक्का लगा और अली शेर खुदा की आंखों पे ठक्का लगा। एड़ी इब्तदा को कहते हैं, आंखें इंतहा को कहते हैं। हुजूर ने शहादत वाली उंगली से ठप्पा लगाकर इशारा कर दिया था, अबू बकर तुझे ठप्पा इब्तदा में लगाया है, तेरी खिलाफत भी इब्तदा में होगी। अली तुझे ठप्पा इंतहा में लगाया है, तेरी खिलाफत भी इंतहा में होगी। ये हुजूर ने गवाही दी थी और इशारा किया था, इसलिए उंगली शहादत वाली इस्तेमाल की थी ताकि मैं दुनिया को गवाही दे जाऊं। एड़ी इब्तदा है, आंखें इंतहा हैं। यही वजह है कि अबू बकर की खिलाफत इब्तदा है, अली शेर खुदा की खिलाफत इंतहा है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको नबी और सहाबा का सच्चा इश्क अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत और मुरब्बत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।